like I said, we have our guests from Physioactive joining us today. So Dr. Ruchi जी ने आज हमें join किया है. And just a quick intro. Dr. Ruchi has a master's degree in sports injury, sports physical therapy, and currently works with the Physioactive Wellness Hub and has a great experience in treating and managing of patients in hospitals like Columbia Asia and various private clinics as a consultant. So quite a bit of knowledge that she brings to the table. And I I understand कि आज का जो हमारा segment है, जो session है, that is regarding the exercise using our own body weight. So quite an, I would say, innovative thing. And Yes, definitely. now I would hand over the mic to Dr. Ruchi. So, doctor, the stage is all yours. Please, you may Thank you so begin much. and all the best. Uh, Thank you, Dr. Anurag. Thank you so much for जी. this platform. And thank you all the team members also for this giving me the opportunity to see all these beautiful people. So, good morning, everyone. Hope I'm audible to all the beautiful ladies and gentlemen out there. Good morning. We can hear you well. Thank you, thank you, thank you so much. So, okay. So, what where to start? Okay. So, before starting my session, I would like to ask you one thing. हम लोग सब कुछ इतना सब कुछ कर रहे हैं मोहा में हम लोग सेशंस ले रहे हैं सब कुछ इतना हो रहा है कि एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर द एल्डरली पीपल so but I want to know from you people ki how much important exercise is to you. Let's be an interactive session. वो मजा नहीं आएगा कि मैं बोलती रहूं आप सुनते रहो. So it has to be a two-way communication. Is it okay if it's very interesting, and at least you get up in the morning and you are there to warm up your body and do some exercise. Right. So that the whole day we are able to spend, in a good energy and spirits. Right. Thank you so much. Thank you so much for your input. Okay. Okay. So I know how much important is to you exercise. So we can say that कि as we grow old, तो जैसे जैसे हम एज की तरफ जाते हैं हमारी जो एक्सरसाइज की नेसेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है नो डाउट वी रिटायर आवरसेल्व्स फ्रॉम 9 to 5 शेड्यूल जो हमारा पुराना एक शेड्यूल रहा है 9 to 5 का तो उसमें से हम लोग निकल आते हैं एंड पीपल से दैट ओके नाउ यू आर लाइक एट होम यू शुड टेक इजी जस्ट एंजॉय just do whatever you want. This is your golden period. I admit this is our golden period. One thing is, am I audible? Yes. Yes, we can hear. Am I audible to everyone? Yes, I can hear you. Okay. So I was just saying why exercise is important. Because this is a golden period and we have maximum time to devote to our body, which is the most important thing in our life. So to enjoy this golden period, so we need to have the exercises, right? There are some limitations which give hindrance to these exercises. अब वो factors क्या हो सकते हैं? Health problems हो सकती हैं हमारी, health issues हो सकते हैं. मे बी डायबिटीज हो गया हाई ब्लड प्रेशर हो गया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया आर्थराइटिस हो गया ये सब चीजें जो है ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हिंडर करती हैं एक्सरसाइज ना करने में देन हमारे एक्स एंड पेन्स रहते हैं बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज मसल्स हमारे कमजोर हो गए हैं हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स जो है वो हमारा साथ नहीं देते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसकी वजह से हमें एक्स और पेन्स होते हैं जो हिंडर करती हैं एक्सरसाइज ना करने में थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई थिंक
कि एक फियर फैक्टर आ जाता है हमारी बॉडी का कि हम कहीं गिर ना जाएं, हम बहुत ज्यादा फ्रेल हैं, हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, कहीं हम गिर ना जाए एक्सरसाइज करते वक्त, कहीं हमें चोट ना लग जाए, अगर चोट लग जाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है, अगर और एक्सरसाइज करेंगे तो मे बी वी कैन इंजर आवरसेल्व्स मोर। सो दीज आर सम बैक हैंड hindrances which obstructs our body not to do the exercises. But I will say that ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं आप ठीक हो अपनी जगह, कि ज्यादा अगर एक्सरसाइज करोगे तो गिर भी सकते हैं, हमने फॉल भी हो सकता है। सो बट अब हमें देखना है कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हिंड्रेंसेस हैं, हम किस तरह से उन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। बिकॉज यू पीपल आर एट दिस स्टेज कि पूरी लाइफ आपने बैलेंस जो है, एक ऐसी चीज है बैलेंस जो आपने लाइफ और वर्क, होम फ्रंट एंड ऑफिस फ्रंट में दोनों को आपने बैलेंस करके चलना है। सो यू नो एग्जैक्ट थिंग कि हाउ टू बैलेंस लाइफ। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू बैलेंस योर बॉडी, to take care of your body. And how will you do it? We'll help you out, we'll guide you out, but you have to follow it. I remember one thing कि मुझे लोग अक्सर बोलते हैं मेरे स्पेक्स को देख के कि मैम आप तो फिजियो नहीं लगते, आप तो टीचर लगते हो। मैं उनको भी बोलती हूँ कि नहीं, मैं टीचर ही हूँ, बट मेरे छोटे स्टूडेंट्स नहीं है, मेरे बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं गाइड करती हूँ, उनको मैं हेल्प करती हूँ। तो इन अ वे आई एम अ टीचर। सो दैट्स अ गुड थिंग टू हियर। ओके, सो ठीक है। सो ये तो हो गया कि हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, क्या क्या हमारी हिंड्रेंसेस हैं एक्सरसाइजेस में जो हमें अपने आप को वो बट बेनिफिट्स भी बहुत है एक्सरसाइज करने की। अब वो मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ जो कि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं बेनिफिट्स को फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल जैसे कि हमारी पूरी फिजिकली बॉडी की हो गई। अब फिजिकल में क्या हो सकता है, एक हमारा बॉडी वेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा बॉडी वेट। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी वेट जो है वो कम होता है एंड वी फील गुड। ऑफ कोर्स एवरीवन फील्स गुड अगर उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा। वेट इश्यूज होते हैं, वेट इश्यूज से मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर वेट कम है हमारा तो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज भी हमारी बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड रीजन आई मे से कि हमें क्रॉनिक इलनेस हो सकते हैं नॉर्मली आफ्टर 60 to 65 years। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन बट मोस्टली पीपल को डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर का इशू आ जाता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, बोन लॉस होने लग जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन पे इम्पैक्ट, जो हमारे मसल्स और बोन्स पे इम्पैक्ट है इन सब चीजों का, वो हमारा कम हो जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर हम किसी चीज को कम कर सकते हैं, हम खत्म, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज करोगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, नॉट एट ऑल, खत्म नहीं होंगी, बट हाँ उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। आपकी मेडिकेशंस कम हो जाएंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल के टाइम में कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के। बट इफ यू डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, योर मेडिकेशंस विल इम्प्रूव, विल कट डाउन, योर एनर्जी लेवल विल बूस्ट अप एंड यू विल फील गुड ऑल्सो, बिकॉज आप इन एनी वे दूसरों की हेल्प कर पाओगे, अपनी हेल्प कर पाओगे। सो थर्ड रीजन इज बैलेंस, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओल्ड एज में। बैलेंस क्या है, हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में भी सुना है कि हाउ मच बैलेंस इज इम्पोर्टेंट टू अस, कि हमारे अगर हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है और हमें हमारा पोस्चर करेक्ट है तो हम अपने बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हमारा बैलेंस इम्प्रूव है तो उसका फायदा देखिए क्या होता है। अगर आपका बैलेंस इम्प्रूव है तो आपकी टेंडेंसी फॉल होने की टेंडेंसी, यू विल इम्प्रूव दैट टेंडेंसी। आपको जो डर लगता है कि कहीं अगर पत्थर आ गया तो मैं गिर ना जाऊं, कोई स्टेप है वो उसका अंदाजा नहीं लगता, ये इट हैपेंस। ओल्ड एज में ऐसा होता है कि जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो हमारा कम हो जाता है। तो उस रिएक्शन टाइम को बढ़ाने में एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करते हैं। तो इन अ वे ये आपका इम्प्रूव ही कर रही हैं, आपको बेनिफिट ही दे रही हैं। ये हमारे हो गए फिजिकल बेनिफिट्स। मेंटल बेनिफिट्स सोचिए क्या हो सकते हैं। हमारी, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी थकेगी,
जब बॉडी थकेगी तो हमें नींद आएगी, नींद ना आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती जी, नींद नहीं आती। अगर हम रात में सोते नहीं है तो हम सुबह फ्रेश नहीं होते। So do the exercises, relax your mind, have a deep sleep and feel energetic and motivated in the morning. Okay. Second is it boosts our confidence and our mood swings also. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे इट एक्ट्स एज एन एंटी डिप्रेसेंट्स. आई होप आई एम नॉट गेटिंग दैट बोर्ड तो नहीं हो रहा कोई मेरे सेशन में? नहीं एकदम नहीं. ठीक है, बिकॉज ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बोलते रहते हैं एक्सरसाइज करनी है. अरे क्यों एक्सरसाइज करनी है? आराम से बैठे हैं घर पे, आराम से टीवी देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हमारा गोल्डन पीरियड है, क्यों भाई हमें क्यों एक्सरसाइज के लिए आप बोलते हो? तो आई एम जस्ट सेइंग कि एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है. आप इनको करिए और इनके ये टाइम है, आपका टाइम है, इसको एंजॉय कीजिए. ओके, सो जितने भी हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स के काम करता है, सैडनेस है, एंजाइटी है, कुछ डिप्रेशन है, वो सब आपके कुछ लेवल तक इम्प्रूव हो जाते हैं बिकॉज हम अच्छा फील करते हैं. थर्ड इज कि इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन. ओके, आई रिमेम्बर समवन आस्किंग अबाउट कि ब्रेन की एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं. तो सी, ब्रेन की एक्सरसाइजेस आप कुछ भी कर सकते हो. आप सुडोको खेल सकते हो, आप क्रॉसवर्ड खेल सकते हो, पजल्स खेल सकते हो. तो आपकी ब्रेन को ये एक्टिव करती है. बट जो हम लोग एक्सरसाइजेस आपको बताते हैं उनमें आपने देखा होगा कि कभी एरोबिक्स आ गया, कभी आपका दूसरी लेग की मूवमेंट्स हो गई, अपर आर्म मूवमेंट्स हो गई, हियर एंड देयर, ऊपर नीचे, लेग को ऊपर करना, नीचे बैठ के, मल्टीपल एक्सरसाइजेस आर देयर. सो व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने आप को क्रिएटिव बना रहे हो, आप अपने को मल्टीटास्किंग बना रहे हो. कभी आप अपने हाथों को उठा रहे हो, कभी इस तरह से कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी लेग्स को ऊपर नीचे कर रहे हो. So what you are doing multitasking. आप अपने ब्रेन को कंटिन्यूअसली एक इंप्रेशन डाल रहे हो कि you are worthy of something. मल्टीटास्किंग होगा तो ब्रेन अपने आप एक्टिव होगा, ब्रेन अपने आप एक्टिव होगा तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी. So indirectly proportional. Okay. Am I clear? यहाँ तक कुछ डाउट्स? तो नेक्स्ट सेक्शन जो है मेरा वो है कि पीपल से कि एक्सरसाइजेस आर बोरिंग. कुछ दिन करती हूँ मैं, एक दिन करती हूँ, फिर मैं बोर हो जाती हूँ, फिर दूसरे दिन मेरा मन नहीं करता, मेरे को चोट, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है. मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि कुछ चीज नहीं करने के बहाने हो जाते हैं. ठीक है, सो इट हैपेंस विद अस आल्सो कि समटाइम्स हमारा मूड करता है करने का, बट कई बार हमारा मूड नहीं भी करता करने का. Okay, but I'll tell you some tips जो मुझे यूजफुल लगे. So I would like to share it with you. कि जब भी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग कहते हैं वॉक करने के लिए मना किया बहुत जरूरी है. पर मैं थोड़ा यहाँ तक कि मैं सेक्शन अटेंड करता हूँ तो yeah, sorry, I'm not able to hear you. Ma'am, continue, please continue. Okay. So मैं ये कह रही थी कि अगर एक्सरसाइजेस को इंटरेस्टिंग बनाना है, एंजॉयफुल बनाना है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक. कोई भी अपना म्यूजिक, आप अपना क्लासिक म्यूजिक लगा लीजिए, कुछ बॉलीवुड लगा लीजिए, कुछ सालसा लगा, जो आपको पसंद है आप वो लगाइए एंड अपनी एक्सरसाइज कीजिए. और यू कैन योर फेवरेट अपनी मूवी लगाइए और उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए. या और व्हाट यू कैन डू, व्हिच I personally see my mother-in-law do. वो अपने भजन लगा लेती हैं, मतलब आरती लगा लेती हैं, एंड देन आरती चलती रहती है, उनका वो रिलीजियस चीजें भी होती रहती हैं और उनकी एक्सरसाइज भी होती रहती है. तो उनको पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा उनका कैसे बीत गया. दिस इज अ वेरी गुड थिंग इफ यू वांट टू डू इट, कि आप जस्ट सिटिंग आइडल देयर एंड लिसनिंग टू दैट. अपनी मल्टीटास्किंग अपने आप को बनाइए, अपने एक्सरसाइजेस भी साथ साथ कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी एक्सरसाइजेस कब खत्म हो गए. Maybe I know some people are doing this. It's just an suggestion which you कुछ अपने दोस्तों को साथ में बुला के and then you can chat with them and do the exercises with them. It's a very good boosting. Moral आपका improve होता है, एक competitive spirit भी रहती है कि इस तरह से हम कर सकते हैं.
तीसरा जो हमारा चीज है कि योगा सेंटर्स एंड ऑल, जब वो लॉकडाउन हमारा खत्म हो जाएगा तब हम लोग अपना योगा सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, लाफिंग क्लब्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत हमारे अच्छे से सारी एक्सरसाइजेस पूरी हो सकती है। तो दीज आर फ्यू टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी एक्सरसाइजेस को बोरिंग ना बनाने में और आपको बूस्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एक्टिव रहना कोई एक साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर बंदा एक्टिव रह सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का है, यंग है, ओल्ड है, एवरीवन कैन डू। बस की क्या है, व्हाट इज द की फैक्टर? की फैक्टर ये है कि जो हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, हम लोग जो आपको एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, उनको अपनी बॉडी के हिसाब से आप मॉडिफाई कीजिए, उनको अपने आप उन एक्सरसाइजेस का प्रोग्राम बनाइए जो आपको अच्छी लगती हैं, और उनको एक क्लब करके यू जस्ट फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ दैट एक्सरसाइजेस व्हिच यू एंजॉय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक्सरसाइजेस वही करनी चाहिए जो जिनमें आपको मजा आए। बोरिंग एक्सरसाइजेस में वही सब कुछ हो जाएगा, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर हम नहीं करेंगे। बस उसमें ये ध्यान रखना है, जो मैं आज आपको चीज बताती हूँ, कि हमारे फिटनेस, जो हम फिट रहते हैं, उसके 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो बैलेंस है, वो मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस अगर आपका इम्प्रूव्ड है, आपका पोस्चर इम्प्रूव्ड है, आपकी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्ड है, आपका ये एक्सरसाइजेस अगर आप योगा वगैरह करते हैं तो आपका पोस्चर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, आपका एक स्टेबल फैक्टर आ जाता है। दूसरा है कार्डियो। व्हाट इज कार्डियो? जो कल वाले सेशन डॉक्टर अनुराग ने लिया था, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, तो उसमें क्या होता है कार्डियो सेशन में? हमारे हार्ट की पंपिंग होती है, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में जाता है, हमारा स्टेमिना इंप्रूव होता है, हमारी एंड्योरेंस इंप्रूव होती है, और उसे करने से हमारी डेली एक्टिविटीज जो होती हैं वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। जैसे अगर आपने किचन में बहुत देर खड़े होना है, या फिर व्हाट यू वॉकिंग करनी है, कार्डियो एक्सरसाइजेस में वो वाली एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम रिदमिक मोशंस में अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, लाइक वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एंड दीज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, जिसमें हमारा एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होता है और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कभी कभी लगता है। कल आपने देखा होगा, हम सब, आई वाज आल्सो इन द सेशन, की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई थी, हमें पसीने आ गए थे, हमारा हार्ट पंप होने लग गया था, तो वो सब कार्डियो एक्सरसाइजेस है। तीसरा जो ब्लॉक है वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी अगेन योगा से आती है। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप सब लोग करते भी होंगे योगा में, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हमारी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। हमारी जो रेंज, अगर हमारा नेक जो है वो इतना ही जा रहा है, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी होगी तो वो चिन जो है वो पूरी हमारी चेस्ट तक लगेगी। सो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन जिसमें हो, दैट इज नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी। वो हम योगा वगैरह से कर सकते हैं। फोर्थ ब्लॉक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ओल्ड एज में, वो जिसका हम आज लोग सेशन ले रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगी और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको हेल्पफुल करेंगे इन सब चीजों को जानने में। ठीक है, सो ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग इन एल्डरलीज विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी वेट। अब इसका मतलब क्या है कि हमने अपने मसल्स को बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना है? अपने बॉडी वेट से। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। एक देखिए, कार्डियो में हमने क्या बताया, हमने एरोबिक, सिंपल हमने एरोबिक एक्सरसाइजेस करी और हमने हार्ट की पंपिंग करी और हमने अपना बॉडी की सर्कुलेशन को बढ़ा दिया। अब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उसी मसल पे जब हम लोग कुछ रेजिस्टेंस डालेंगे, जैसे कि अब रेजिस्टेंस आपका खुद का बॉडी वेट हो सकता है, कुछ फ्री वेट्स हो सकते हैं जैसे डंबल्स हो गए या थेराबैंड्स हो गए, इन सब चीजों से हम लोग अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है? हम तो ऐसे ही अच्छे भले हैं भाई, स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ाएं? ठीक ठाक तो है, चल फिर रहे हैं, अपना डेली काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? स्ट्रेंथ तो है हमारी में, तभी तो हम चल रहे हैं। बट
ये स्ट्रेंथ को समझने का इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, जितने भी मसल ग्रुप्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 साल में सबसे ज्यादा होती है। 20 to 30 years we can say that it is maximum ग्रोथ रहती है, मसल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, हम बहुत एक्टिव रहते हैं। धीरे 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 हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लग जाती है। आफ्टर 60 to 65 years it starts to decline और एक्सेलरेशन हो जाती है उसकी डिक्लाइन की। जितनी वो 30 to 35 years में स्ट्रेंथ आपकी है, उससे आप मान लीजिए कि 50 to 60% आपकी कम हो जाती है 60 to 65 years। अब वो ये एक तो फैक्टर हो गया कि एज हो गया। अब एज में हम क्या होता है, हमारी मसल जो है कम हो गया, हमारा मसल साइज कम हो जाता है और हमारा बोन जो है वो कम, डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जो फैट है, अब फैट क्यों ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म इज नॉर्मली हार्मोनली होता है, वो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म के कम होने के कारण हमारा वेट बढ़ जाता है, हम लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं जितना हम यंग एज में रहते थे। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये हमारे मसल्स जो स्ट्रेंथ है उसको कम करते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कम होने का हमारा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन ये होता है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर एक इम्पल्सेस हैं जो हमारे मसल्स को कंटिन्यूसली एक्टिव रहने के लिए बोलती हैं, बट जैसे जैसे एज होती है तो वो एक्टिवेशन जो होती है वो कम होने लग जाती है। सो ये हमारा बोन स्केलेटल फंक्शन और हमारा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तो हमारे मसल स्ट्रेंथ को ये कम कर देती है। और जब हमारी मसल स्ट्रेंथ कम होती है तो हमारी फोर्स प्रोडक्शन, जो हमने काम करना है, वो कम हो जाता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो फोर्स प्रोडक्शन होती है वो हमारी कम हो जाती है। जब हमारी फोर्स प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हम लोग काम कम करते हैं, हमारा मन नहीं, वो आगे मल्टीपल फैक्टर्स में हो जाता है कि हमें काम नहीं करता, हम लेथार्जी फील करते हैं बिकॉज अंदर से प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है फोर्स। तो हियर कम्स अ रोल, अगर हम बॉडी वेट के थ्रू एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या पावर ट्रेनिंग करते हो, देन आपकी मसल का जो साइज है, जो आपका मसल का वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा। और जब आपका मसल का साइज बढ़ जाएगा तो आपकी ऑटोमेटिकली फोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी उतनी आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ होगी। तो इट इज directly proportional. A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C. So it's like that. एक और रिसर्च कहती है कि जब हम लोग एजिंग होती है तो हमारे जितने भी एक्सटेंशन मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ एक्सटेंशन मूवमेंट। ये हमारी और ये चीज ये हमने पीछे किया लेग को, मतलब हिप और नी, इसकी जो एक्सटेंशन है वो हमारी दोनों मूवमेंट्स जो होती हैं विद एज कम हो जाती है, ये रिसर्च कहती है। हमारा फोकस जो है, मेरा आज एक्सरसाइज जो आपको मैं बताऊंगी उसका मेन फोकस इन्हीं दो जॉइंट्स में है। स्पेसिफिकली हमारा बैक, हमारा दिस इज आवर बैक एंड दिस इज आवर हिप पॉइंट एंड हमारा नी। सो इनकी एक्सरसाइजेस अगर हम ज्यादा, और बेसिकली सारी एक्सटेंशन मूवमेंट्स ही होंगी जो आपको हेल्प करेंगी विद द बॉडी वेट टू इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, right? So can we start the exercises, which is the most important thing? Are you all ready? I want a thumbs up from everyone. Please start the exercises. Okay, I think you people are more interested in exercises, right? Theory parts are
ठीक है. So let me adjust my computer. Okay. Just give me 1 minute. So for this, we need a chair, which is most important. I hope everyone has your chair. चेयर है, आपको खड़े होना है और आपके पास दो चीजें होनी है. आप खड़े हो जाएंगे एंड अपनी चेयर जो है अपने पास में रख लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी लोअर लिम्ब, अपना जो लोअर लिम्ब है उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर हम अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे. सो आई एम फोकसिंग ऑन द लोअर लिम्ब एज वेल एज द अपर लिम्ब आल्सो. तो पहले लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है. सबसे पहले चेयर के बिल्कुल आगे खड़े हो जाना है और आप क्या करना है, अपने हाथों, इस पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आपके शोल्डर्स जो है दैट विल बी स्लाइटली बेंड बैकवर्ड्स, आर्म साइड्स पे, एंड देन व्हाट विल यू डू, यू विल होल्ड द आर्म रेस्ट एंड देन सिट ऑन द चेयर. जस्ट डेमोन्स्ट्रेट, उसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. Either you can do like this, ऐसे रख के आप बैठ सकते हैं, और ऐसे, या फिर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो चेयर पकड़िए और चेयर की आर्म रेस्ट लेके आपको सिर्फ बैठना है और खड़े होना है. नॉर्मली स्कूल में ये पनिशमेंट देते थे टीचर्स, बट ये पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे नीज की सर्कुलेशन को बढ़ाती है. हमारा जब नीज बेंड हो रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बॉडी वेट जो है उसके हिसाब से हम लोग एंड नीचे जा रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप आर्म रेस्ट को पकड़ रहे हो देन आपकी नीज के ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा. इफ समवन हैज इश्यूज ऑफ आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो देन प्लीज आर्म रेस्ट पकड़ लीजिए एंड देन अपने सिट टू स्टैंड कीजिए. सो दिस एक्सरसाइज नेम इज सिट टू स्टैंड. Otherwise, if there's no problem, you can do like this. So we'll do another 5. 1, 2. Very good. Very nice. I'm happy to see everyone doing this. 3. My chair is moving. 4 and 5. Very nice. So total of 10 repetitions. We can do this. Now relax and sit on the chair. Okay. Everyone sitting on the chair. ठीक है. थोड़ी सी deep breathing करेंगे because वो हमारा जितना circulation बढ़ा है उसको थोड़ा सा cool down कर देगा. So how we'll do breathing exercises everyone knows. नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस को बाहर निकालेंगे. So 3 repetitions करेंगे इस चीज की. So it's very important to, after every exercise, deep breathing कीजिए because ये हमारे circulation जो बढ़ाता है उसको cool down कर देता है. किसी भी injuries को आपको prevent करता है, injuries के बचाता है injuries से अगर कुछ हो सकती है. ठीक है. Now our heart rate is normal, our circulation is maintained. Now we'll switch it to other exercise. Okay. Other exercise जो है उसपे हम क्या करेंगे, ये जो चेयर है इसके हम बैक रेस्ट पे आ जाएंगे. मैंने इस एक्सरसाइज को गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज बोला है. अब गुड मॉर्निंग क्यों है, हम लोग नॉर्मली आपने देखा होगा कि गुड मॉर्निंग कई देशों में लोग इस तरह से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ऐसे करके, ऐसे गुड मॉर्निंग. या फिर मुझे आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो हम अपने टीचर्स को भी जब गुड मॉर्निंग बोलते थे तो हम लोग ऐसे गुड मॉर्निंग करके बोलते थे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे करके. So I've named this exercise good morning. It's a very good exercise for the back muscles. इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है आपने
बैक से बेंड नहीं करना है, आपने अपने ग्लूट्स, ये वाले जो ग्लूट्स होते हैं इनसे बेंड करना है, बैक स्ट्रेट रहेगा। जस्ट उसके बाद आप करिएगा, जस्ट ध्यान से देखिए। मेरी जो आर्म्स की मूवमेंट, आर्म्स हैं वो मेरी ऐसे रहती हैं, लाइक दिस, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम स्लाइटली, मैं अपने बैक को थोड़ा सा पीछे करूंगी, अपने ग्लूट्स को थोड़ा सा पीछे करूंगी, एंड देन आई विल बेंड। मेरी बैक स्ट्रेट है, मेरे जो बैक ऑफ द थाई मसल्स हैं उन पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मेरी बैक बेंड नहीं हो रही। सो थोड़ा सा बैक को बेंड किया एंड देन डू इट, प्लीज डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। एनी कंफ्यूजन? Let's start. We'll do 10 repetitions. 1, 2, very good. Keep on moving. 3, थोड़ा सा बैक को पीछे, 4, बैक को पीछे, 5, बैक को पीछे, 6, बैक को पीछे, 7, बैक को पीछे, 8, मैं जल्दी तो नहीं जा रही हूँ, आई होप आई एम नॉट रनिंग, 9, 10, वेरी गुड। ओके, डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। Very nice. After doing deep breathing, I feel very good. Okay. So next, अब हम क्या है, हमारा जो ये काफ एरिया है, दिस इज आवर काफ एरिया, जो ये वाला हमारा बैक ऑफ द काफ है, तो उसकी एक्सरसाइज है। उसमें हम क्या करते हैं, बॉडी वेट से कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आर्म रेस्ट को पकड़ लीजिए, जो हमारी चेयर की आर्म रेस्ट है, जस्ट होल्ड देयर एंड आर्मरेस्ट को पकड़ा और हमने हील्स को रेज किया। सिंपल है ये एक्सरसाइज, बट इट इज वेरी गुड फॉर योर काफ। अगर आपके काफ में पेन है या कुछ टाइट है काफ, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसको रिलीज करने में। और टेक वेरी केयर कि आप चेयर को पकड़ के कीजिए, अदरवाइज फॉल हो सकता है। 3, 4, 5, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स भी हमारे स्ट्रेट रहेंगे, हम आगे की तरफ रहेंगे स्ट्रेट सिंपल पोजीशन में। वील जस्ट हील रेज। 8, 9, 10, वेरी गुड। ओके, थोड़ा शेक कर लीजिए लेग्स को। Let's get started with the fourth exercise. What? अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हमारी जो ये वाली मूवमेंट्स होती हैं, ये मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं विद एजिंग। तो इस पे वर्कआउट करना विद द बॉडी वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट सी हाउ विल आई डू इट। तो हम बैक रेस्ट को पकड़ेंगे, एक लेग के ऊपर अपना शिफ्ट करेंगे वेट एंड लेग को पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. Now other leg. Body straight. 1, 2, 3, 4,
One leg only. 5, दोनों लेग्स की करेंगे हम लोग। हमारी बॉडी स्ट्रेट है और पूरा हमारा वेट जो है वो एक लेग पे है। 9, 10, shake your legs. Okay, good. So now ये तो हो गए हमारे बैक हिप एक्सटेंशंस। नाउ दिस, इसमें हम एक आर्म चेयर को पकड़ेंगे ताकि सपोर्ट रहे। फिर से एक साइड पे बॉडी वेट रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Very nice. ये कभी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. इससे क्या हो रहा है कि आपकी नीज की सर्कुलेशन और पूरे लेग की सर्कुलेशन जो है वो बढ़ती है। आपके जो प्रोप्रायोसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। आपके न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो हम लोग लास्ट बात कर रहे थे, ब्रेन एक्टिवेट होता है कि जस्ट पंपिंग एक्शन जो है मसल्स का वो इंक्रीज करता है इन सब एक्सरसाइजेस। ओके, आई होप आई एम क्लियर, एवरीवन इज ऑन माय पेज। ग्रेट, ठीक है। सो ये सारी हमारी एक्सरसाइजेस हो गए। अब जो लास्ट हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है लोअर लिम्ब की, दैट इज स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग हम पहले भी कर चुके हैं। सो स्क्वाटिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इसमें हमारा जो ये चीज मैं आपको बता रही थी कि एक्सटेंशन मूवमेंट जो होती है उसमें हेल्प करता है। हाउ डज इट हेल्प? बिकॉज दीज आर अ क्वाड्रिसेप्स। हम इसको अपने मेडिकल टर्म में फ्रंट थाई मसल्स को क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। इनका जब एक्टिवेशन कम हो जाता है तो हमें नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो स्क्वाटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नी जॉइंट्स की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बट उसकी स्ट्रेंथ अब ज्यादा, अगर उसमें दो चीजों का हमने ध्यान रखना है कि जो हमारी नी वो हमारे इन टूज के आगे नहीं जाएंगे। लाइक वी विल नॉट डू स्क्वाटिंग लाइक दिस। सी आई एम डूइंग, मैं ऐसे मेरे नीज जो हैं वो मेरे पैरों से पंजों से आगे चले गए हैं, विच इज इनकरेक्ट। इससे क्या है, हमारा पूरा लोड जो है बेचारे नीज के ऊपर आ गया है। सो हाउ विल वी डू इट? वी विल, यस, अभी देखिए पंजों के पीछे ही है, पकड़ा, इसको पकड़ा और ऐसे किया। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं पर बैठे नहीं है, ठीक है। So this is known as squatting. इसमें आप देखेंगे मेरे नीज जो है वो टो से आगे नहीं जा रहे हैं। 3, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो इंजर हो सकते हैं हमारे नीज। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Just shake your legs. This is very important. Shake it, shake it. Right. So ये हमारी upper limb, lower limb की सारी मूवमेंट है। I hope it's clear. एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ. It will be more clear then. One repetition. One was sit to stand. Other was this good morning. इसमें हम बैक को पीछे करेंगे और मूवमेंट ये गुड मॉर्निंग, देन heel raises, backward, sideways, squatting. इसमें knees
जो है वो टोज से आगे नहीं जाएंगे। सो ये हो गई हमारी लोअर लिम्ब की। लेट्स कम टू द अपर लिम्ब पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपर लिम्ब में हम लोग कैसे एक्सरसाइज करेंगे? फिर हम चेयर की ही मदद लेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग पुशअप्स करते हैं, वॉल पुशअप्स करते हैं या फिर ग्राउंड पे पुशअप्स करते हैं। हम लोग चेयर पे पुशअप्स करेंगे, ठीक है? तो वही बैक रेस्ट पकड़ेंगे, ऐसे हमारे दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगा एंड व्हाट विल यू डू? यू विल बेंड इट फॉरवर्ड। इसमें ध्यान रखना कि आपकी चेयर जो है वो मेरी तरह व्हील्स ना हो उसमें, नहीं तो आप आगे चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। 1, ये वाले जो मसल्स हैं इनकी मूवमेंट कर रहे हैं। बॉडी वेट हमारा बैक का भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है और हमारे लोअर लिम्ब एज वेल एज अपर लिम्ब दोनों की मूवमेंट्स हो रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Shake your legs, shake your legs. मुझे भी पसीना आ गया है। गुड, अच्छा है पसीना निकलता है तभी तो हम लोग हमारा वेट भी कम होगा, राइट? ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस सिंपल है वो, उसमें हमने शोल्डर्स प्रेस करने हैं। लाइक वील डू एल्बो प्रेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। 1, 2, सिंपल है। 3, हम एंटी ग्रेविटी अपनी मोशन लेके आ रहे हैं। 4, 5, इसमें ये चीज ध्यान रखना हमारे शोल्डर्स जो हैं वो पीछे की तरफ होंगे, ऐसे करके नहीं करना है। इट्स लाइक दैट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Just shake your arms, shake your arms. It's very important to improve the blood circulation. फिर हमारा सिंपल है श्रगिंग। जो हमारे ये वाले मसल्स हैं इनकी टाइटनिंग हो जाती है, उसको कैसे हम करेंगे? हम अपने शोल्डर्स को पहले बैक लेके जाएंगे फिर ऊपर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे कर लेते हैं, विच इज इनकरेक्ट। हम अपने ये वाली चीज नहीं करनी है, पहले शोल्डर्स को बैक लेके जाना है और फिर ऊपर। 1, फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर बैक। 2, इसमें आपको दिखेगा कि ये वाले जो हमारे मसल्स हैं ऐसे लगता है कि उसकी श्रिंकिंग कोई कर रहा है। सो दिस एक्सरसाइज नोन एज शोल्डर श्रगिंग। बच्चे होते हैं ना ऐसे कर लेते हैं कि मैंने नहीं किया, सेम वैसे ही करना है बट थोड़ा करेक्ट वे में करना है कि पीछे शोल्डर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक, राइट? देन इज हमने अपर लिम्ब का कर लिया, हमने लोअर लिम्ब का कर लिया। व्हाट अबाउट आवर कोर? कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट के मसल्स, सबको चाहिए कि अपना पेट कम हो जाए। एवरीवन वांट्स इट बिकॉज यहाँ पे ही है सारी प्रॉब्लम, यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा कोर एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, बट जिनके नीज की इश्यूज हैं वो प्लीज इनको थोड़ा सा ज्यादा बेंड मत कीजिए नीज को। इसमें क्या करना है, अपने पेट को आपने सुकोड़ना है, कंस्ट्रक्ट होल्ड करना है इसको अंदर की तरफ, और अपने पैरों को, ये देखिए मैंने अपने पैर जो हैं, एक मिनट, मैंने अपने पेट को अंदर की तरफ किया
और अपना हाथ रख सकते हैं उसके ऊपर, पैर मेरे बाहर हैं और फिर ऐसे 1। जब मैं अपने पैरों को अंदर की तरफ लेके जाऊंगी तो अपने मैं पेट को कंस्ट्रिक्ट करूंगी, उसको अपने अंदर लेके जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे रिलैक्स है, जब हम अंदर लेके गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Okay. So ठीक है, ये तो सारी हमारी होगी एक्सरसाइज पार्ट। कुछ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम टिप्स। उसके बाद आई थिंक सेशन हमारा टाइम मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स का। आई थिंक वील हैव टाइम। ओके, वी हैव टाइम डॉक्टर अनुराग? हाँ जी, we have time, plenty of time. Simple, I'll just find out with small tips. टिप्स में कुछ नहीं है, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की चूज सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज जो आपको सूट करती है, जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिलती है, वही एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने हेल्थ कंसर्न्स को आप प्लीज ध्यान में रखिए एक्सरसाइज करने से पहले। सपोज आपको डायबिटीज है, आपका मेडिकेशंस का टाइम है, या फिर आपका कुछ मील्स का है, तो उसको अपनी एक्सरसाइजेस को उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो वो ना एग्रेवेट हो। बीपी की मेडिसिन लेनी है तो उसको स्किप मत कीजिए। एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग में लेना, उसको स्किप नहीं करना, फिर एक्सरसाइज करें। थोड़ी प्रिकॉशंस जो है अपनी पूरी लीजिए ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज ना हो जाए एक्सरसाइज के साथ। देन इंजरी को ये इम्पॉर्टेंट है बहुत कि अगर अपनी इंजरी को प्रिवेंट करना है तो प्रॉपर वार्म अप एंड प्रॉपर कूल डाउन। अब वार्म अप जो है वो जैसे कल डॉक्टर अनुराग ने हमें बताया था कि वार्म अप के लिए आप एक ही ये मार्चिंग कर सकते हैं। सपोज ये वाली जो चीज है, दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग द वार्म अप। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आप ये 1 मिनट के लिए ये वार्म अप कर लीजिए। एक ही जगह पे खड़े हैं और मार्च करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके आर्म्स स्विंगिंग मोशन में होने चाहिए। इफ यू स्विंग योर आर्म्स, योर कार्डियो विल इम्प्रूव। तो ये वार्म अप है हमारा बेसिकली। सो जब वार्म अप हो जाएगा उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे। और कूल डाउन जो है, कूल डाउन में आप क्या कर सकते हैं, अपना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अपने सिंपल स्ट्रेचेस कर सकते हो योगा के, अपना जितने भी आपको योगा के स्ट्रेचेस पता है या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो सब करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट। 5 मिनट का 1 मिनट का वार्म अप एंड 5 मिनट का कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ इंजरीज इफ यू हैव विद द एक्सरसाइजेस। Fourth and most important thing is that कि अगर listen to your body। अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको कुछ चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो गया है, या फिर यू आर नॉट फीलिंग गुड, you feel dizzy or you have a chest pain or some shortness of breath, immediately stop the exercise। कोई joint है आपका वो red है, swollen है, या touch करने में आपको pain हो रहा है, avoid that exercise for the day। It's not mandatory to do the exercise, stop there and only to prevent further injury। And other common की अपनी exercises को short and steady रखिए, धीरे धीरे increase कीजिए, thrice a week ही करिए। And started with twice a week and then increase it to twice a week। अपनी limitations, अपनी जो आपकी, जैसे आप 10 कर रहे हैं अभी तो 10 ही रखिए। After 15-20 days when you are used to it, then increase it to 20। ऐसे progression भी important है करने में। And last जो second last जो है वो है कि किसी भी एक्सरसाइज को करते वक्त अपनी ब्रेथ को होल्ड मत कीजिए। वो डिफरेंट है कि जब हम लोग कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं और हम बोलते हैं कि इसको होल्ड करके रखिए, वो जॉइंट को होल्ड करने की बात होती है। ब्रेथ को कभी भी हम, कोई भी आपको थेरेपिस्ट ब्रेथ को होल्ड करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। सो उसमें ये है कि आप जब भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो डोंट होल्ड योर ब्रेथ, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का रिस्क बढ़ रहा है। जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट
exercise, or if you have that problem. Okay. Last thing I want to add in that is ki just experiment with your mindfulness. What is the statement? I like the statement ki experiment with mindfulness. कोई भी आपको एक्सरसाइजेस अगर हम लोग बता रहे हैं या कुछ कोई भी आपको बताता है, उसको आपको कंसंट्रेशन से सुनना है, फोकस देना है और फिर करना है. व्हाई? बिकॉज अगर आप फोकस, आपको अपनी उनमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है. एक तो अपनी रिदम ऑफ ब्रीदिंग, आपको पता लग जाता है जब आपकी ब्रीदिंग अच्छे से हो रही है, आप इनहेल एक्सहेल अच्छे से कर रहे हो, देन यू नो यू आर डूइंग करेक्टली. देन थर्ड इज कि आपका जो फुट स्ट्राइक है, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्चिंग करो, तो मार्चिंग में आपकी आवाज आएगी आपको, सो यू नो कि यू आर डूइंग द एक्सरसाइज करेक्टली. अगर नहीं ठीक से फोकस से नहीं करेंगे तो आपको सुनने का माइंड इधर उधर जाएगा, तो विच इज नॉट करेक्ट. एंड कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको अच्छे से उसकी रेंज ऑफ मोशन लेके आइए. उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लेक्सिंग जो करेंगे मसल्स की, लोअर लिम्ब की है या अपर लिम्ब की है, उसकी जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो प्रॉपरली पूरी रेंज ऑफ मोशन में कीजिए. ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, फोकस में रखेंगे, तो आपको क्या होगा, आपकी कंडीशन बेटर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आपको आएगा. एंड थर्ड इज कि आप कुछ भी एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज जो हैं उनको आप अवॉइड कर पाएंगे. सो दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंट विद माइंडफुलनेस. एंड I hope I'm clear about the tips. Few tips I just wanted to share with you कि ये थोड़ा ध्यान रखना होता है एक्सरसाइज करने से पहले, ये सब चीजें हैं. बाकी I will say that क्रिएटिव रहिए, अपनी क्रिएटिव इनोवेशन अप्रोच रखिए. मिक्स एंड मैच, जैसे आप खाने में अपना मिक्स एंड मैच बनाते हो, वैसे एक्सरसाइजेस में मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा सा डिश बनाइए जिसको आप इंजॉय करो, क्रिएटिविटी लाओ, इनोवेशन लाओ. एंड देन आई होप कुछ भी आपकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं वो आप ओवरकम कर लोगे, एंड यू स्टे सेफ एंड एक्टिव थ्रूआउट योर लाइफ. विद दैट आई कंक्लूड माय सेशन एंड आई एम फ्री. आई एम हियर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग if you have any doubts. I'm here. Dr. Ruchi, we are really very happy with the way you have conducted the exercises. Thank you, sir. I have one small issue. Yes. I have a knee issue there, and whenever we go to orthopedic, they tell us to do some exercise कि अपनी leg को straight करके उसको 10 सेकंड के लिए रोको और उसके बाद वापस लाओ, and to be 10 times to be done that. ये वाली exercise थोड़ा सा आप बता सकेंगे कैसे, how this has to be executed? Sir, actually, to be very, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? ये जो नी का जो इशू है हमारा, तो नी में मतलब पेन रहती है, तो जब ऑर्थोपेडिक के पास गए थे तो ऑर्थोपेडिक कहता है कि इसके लिए आप अपनी टांग को सीधा रखो और पंजों को थोड़ा अपनी तरफ खींचो और 10 सेकंड के लिए रोक के रखो. राइट. तो ये एक्सरसाइज जो है ये अभी तक किसी सेशन में किसी ने बताई नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई फ्रॉम यू फॉर माय नी इश्यूज whether this exercise is to be done, and if it is to be done, how it is to be done that. Okay. सर देखिए, एक नीज की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं और आई विल रिक्वेस्ट कि डॉक्टर अनुराग की ये इस पे भी एक सेशन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ नी एक्सरसाइजेस के ऊपर. सो जो आपके डॉक्टर ने बताया है उसमें अच्छी बताई है, नो डाउट. उसमें मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज जब एक सेशन होगा तो उसमें हम और भी नई चीजें आपको बता पाएंगे. इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें करते क्या है, कि मैं डेमो करके ही दिखा देती हूँ. ये मेरे पास जो रोल है ये छोटा रोल है, ये बहुत छोटा रोल है. आपको एक अपना जो बादिंग टॉवल होता है बड़े वाला, वो आपको लेना है और उसको इस तरह से हाफ पे डिवाइड करेंगे एंड उसको इस तरह से रोल कर लेंगे.
राइट? तो ये जो छोटा सा रोल है ये बड़ा सा रोल बन जाएगा. एंड देन व्हाट विल वी डू? वी कीप दिस रोल अंडर आवर नीज. ठीक है? या आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, एज यू विश. तो इसमें एक चीज का इम्पोर्टेंट है कि लेग्स को आपने स्ट्रेट रखना है, नीज भी स्ट्रेट है, आपका फुट भी स्ट्रेट है. सो देन व्हाट विल यू डू? आप अपने पंजे को अपनी तरफ लेके आएंगे और अपने नीज को प्रेस करेंगे उस टॉवल की तरफ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर छोड़ देंगे. इससे क्या कर रही हूँ कि वाला जो मेरा क्वाड्रिसेप्स मसल है ये वर्कआउट हो रहा है और हमारे नीज जो हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो रहे हैं और मैं होल्ड कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साइमल्टेनियसली मेरा जो फुट है वो अपनी तरफ आ रहा है. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से भी हमने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और पंजे को अपनी तरफ लाने का ये है कि हमने अपना जो काफ का है वो वाला जो है उसको भी हमने एक्टिवेट किया. तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से करेंगे हम लोग. आई होप मैम मेरी भी एक नी रिप्लेस्ड है, तो डॉक्टर ने भी मुझे वही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पैरों की इसी तरह से बताई दी हैं, तो वो मैं कर रही हूँ, तो उससे मुझे काफी रिलीफ मिलता है. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इनको कई लोग इनको मैजिक एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, मैजिक एक्सरसाइजेस फॉर द नी. तो इट्स वेरी गुड. अगर आप डेडिकेटेडली इसको करते हैं देन डेफिनेटली आपके नीज में इम्प्रूवमेंट आती है. ऑलरेडी एक नी रिप्लेस्ड है और एक नहीं है, बट मैं करती डेली हूँ. अब दोनों नीज पे ही कीजिए ताकि दूसरा नी भी फिट रहे. डॉक्टर रुचि, हाँ जी. डॉक्टर रुचि, आई एम वेरी इम्प्रेस. मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ. ओके, हेलो सर. वेरी नाइस टू हियर यू. मेरा नाम अविनाश सहाय है. एंड आपने जो एक्सरसाइज के साथ ब्रीदिंग वाली बात बताई बहुत अच्छी है. हाँ जी. एक्चुअली जिम में क्रॉस ट्रेनर करता हूँ 30 मिनट्स के लिए. देन आई मूव माय लेग्स एंड ब्रीदिंग का बहुत अच्छा है कि व्हेन यू आर लिफ्टिंग अ वेट देन यू ब्रीथ आउट एंड सो वो ब्रीदिंग से बड़ा बच्चा कनेक्टेड है. और अभी आपने जो नीज का वो बताया वो योगा में हम लोग को सिखाते हैं वैसे ही के पैर बेंड करके यू काउंट अप टू 10 हाँ जी. and press your knees and it's excellent. After the knees become a little okay because you have to consult a orthopedic जिसने आपका knees को देखा है. मैं स्क्वाट करता हूँ 10 बार और वो knees के लिए है. और फिर for your calf muscles also वो bend करता हूँ. I've been very fortunate. I'm going to be 78 next month. Great sir, great, very nice. I feel very thrilled in doing this exercises and it's been a great program. The way you described it, very informative. Thank you sir, thank you. Thank you Dr. Ruchi. बस मिस्टर अविनाश एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्क्वाटिंग जो आप कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताई है स्क्वाटिंग वैसे ही करनी है. अपने ध्यान रखना है कि नीज जो है वो टो से आगे नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज वो आपके नीज को और ज्यादा इंजर करेंगे. बेसिकली स्क्वाटिंग हम अपने ग्लूट्स के लिए और बैक ऑफ द थाई मसल्स के लिए करते हैं. तो उनकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करने के लिए वो करते हैं. अपने नीज पे जोर नहीं नीज पे कुछ जोर नहीं आना चाहिए स्क्वाटिंग करते हुए. बहुत अच्छी इसका एंड उसके साथ एक और है, नेवर लुक एट अ यंगर पर्सन एंड ट्राई टू कॉपी बिकॉज़ हर की एज डिफरेंट है. एग्जैक्टली, यस यस. एक्साइटेड व्हेन वी लुक समवन रनिंग ऑन द क्रॉस ट्रेनर. आई सेड डोंट रन. देखिए मैं उनसे कहता हूं कि फिजिक्स में है एवरी एक्शन एंड इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. ट्रू सर, ट्रू. You run and jog on the ground, you give a lot of pressure on the ground. The ground is hard. Exactly. तो सैंड पे करो, घास पे करो, हार्ड ग्राउंड ना करो, तो वो पूरा प्रेशर नीज पे आता है. जितने रनर्स हैं एक्साइटमेंट तो बहुत है but they're going to injure their knees. So and physics में work done is time into distance. You don't, speed is not there. और ज्यादा वॉक करो, किलोमीटर बढ़ा लो. And most important is to feel happy. Yes, exactly. Very important. That's the key. Yeah, I actually make people happy.
Exactly. Because I do comedy shows. I'm also on your channel. We'll come today and talk about it. But very nice. I'm very impressed with the way you describe. Same here, sir. Same here. Same here. Thank you so much. Any more questions? हाँ जी, please. मैं एक चीज थोड़ा बोलना चाह रही थी। आज ना एक्चुअली क्या हो रहा था कि नेटवर्क बहुत ज्यादा जा रहा था। ओके। कई बार आपका तो मैं चाहूंगी कि कभी 1-2 दिन रुक के, कुछ दिन रुक के फिर से एक बार सेशन ये वाला हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जा रही थी। ओके। मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगा काफी ज्यादा। श्योर, आई कैन कनेक्ट डॉक्टर अनुराग बता पाएंगे इसके बारे में। We'll just, सेशंस मैम हर ऑल्टरनेट डे बेसिस पे चलते हैं। एक दिन मेरा, देन नेक्स्ट डे फ्रॉम फिजियोएक्टिव, देन मेरा, देन फिजियोएक्टिव। एंड अभी जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं सब रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड सब यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएंगे विद टाइम हमारे चैनल पे। सो आप जब हमारे इमोहा एल्डर केयर अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, आप उस पे हमारा चैनल ओपन करेंगे तो आपको उसमें सारे उसके एपिसोड्स मिल जाएंगे। Thank you. So you can watch them anytime you want. Yes, sure. Like back from the very first session that I had. Yes. अच्छी बात। I'll see. जी बिल्कुल। बाकी इंफॉर्मेटिव बहुत है, अच्छा लग रहा है, और द वे दे आर जस्ट यू पीपल आर प्रेजेंटिंग इट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। छोटा क्लिक करो उसमें। चलिए, if anyone else has any questions आप पूछ सकते हैं। कोई डॉक्टर राग जी सर बताइए। सर वो नी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि probably need to be redone something, not been probably क्योंकि नी इश्यूज इतने हैं elderly एज में। if a whole session can be given for this particular purpose. हाँ बिल्कुल सर, हो सकता है। अभी लाइक कल जैसे हमारा सेशन एरोबिक्स पे हुआ था, तो अगला सेशन जो अगर मंडे को मैं लूंगा, ऑल्दो उसमें हम एरोबिक्स करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे उसको, लेकिन हाँ एक अलग से सेशन घुटने के लिए हो सकता है बहुत आराम से, जिसमें वी कैन एक्सप्लेन ऑल दी आइसोमेट्रिक्स एंड एक्टिव आरओएम एक्सरसाइजेस एंड आगे भी फर्दर उसमें प्रोग्रेशन चलता रहता है। तो जिसके जो डाउट्स होते हैं कोई या क्वेरीज होती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आल्सो वी कैन लाइक ऐड मोर थिंग्स टू इट। वो हम शुरू करेंगे मंडे से। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो मैम। हेलो डॉक्टर अनुराग। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ, तो ऐसा है कि मुझे भी स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो आई कैन नॉट डू द बेंडिंग लाइक मॉर्निंग टुडे सो दैट ये आगे झुक के जैसे करते हैं वो नहीं करती हूँ। और स्पाइन का आप एक दिन सेशन लीजिए स्पाइन के लिए। थोड़ा स्पाइन के लिए सेशन तो जैसे मैम हमने ऑलरेडी पिछले वीक में पूरा सेगमेंट वाइज लिए हैं सेशंस। पहले हमने स्टार्ट कोर से, देन लोअर बैक से, देन वी वेंट टू द सर्वाइकल स्पाइन। बाकी जब जो हमारा थर्ड सेशन था, अगर आपने आई होप एंड किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द लोअर बैक एंड आइसोमेट्रिक्स ऑफ लोअर बैक। वो एक गैप करेंगे अच्छे से। एंड उसके अलावा उसमें कुछ चीजें लाइक आई सेड कि जैसे जैसे अभी क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते पूरा लाइक बॉडी के हर जॉइंट को इतनी डिटेल में करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। सो वीक बाय वीक हम चलते हैं उसकी तरफ। अभी नेक्स्ट वीक में जैसे हम नीज पे शुरू करेंगे, नीज कंप्लीट करके देन विल हेड टू द स्पाइन एंड उसमें चीजें विद टाइम ऐड होती जाएंगी। तो आप नेक्स्ट वीक भी मतलब ट्यून कीजिएगा, तो आपको उसमें स्पाइन के बारे में भी एक्सरसाइजेस हम अच्छे से समझा देंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलिए, और कोई क्वेश्चंस हैं अगर तो पूछ सकते हैं। नहीं, थैंक यू। ओके, चलिए।
So that will conclude our session for today, I hope. And I hope कि सबको session अच्छा लगा. Everyone got to know some new things, some good things. And कहीं ना कहीं पे like I said कि इससे 1% ही सही लेकिन एक पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में हम ला पाएंगे. So with that, I'll conclude the session for today. And Dr. Ruchi, thank you so much for joining in. आपका session बहुत अच्छा था. Thank you And so सबको much. सबको अच्छा लगा. And ये सब इतना अच्छा फीडबैक सुन के मुझे भी अच्छा लगा. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा. आप बहुत जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा. This Emoha platform is very good. जी I जी really like it. I'm fortunate to come to your platform and give my inputs. जी. Thank you so much. आज तो फर्स्ट सेशन ही था आपका भी. अभी तो सभी पूरी फिजियोएक्टिव टीम से भी एंड सभी एल्डर से भी मुलाकात तो होती रहेगी. हाँ एंड जी, definitely. कहीं ना कहीं पे जब कहते हैं कि जैसे एक मुश्किल टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है जहां पर इंसान को लगता है कि इसके आगे हम क्या करें. तो आई थिंक ये जो पूरा प्लेटफॉर्म अभी है एंड दी व्हाट इमोहा इज डूइंग राइट नाउ, उस एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इस बात का कि एक पॉइंट पे आके जहाँ एक ऑब्स्टिकल ऐसा आ जाता है जिसको हम शायद पार नहीं कर सकते, शायद उसके हम ऊपर से कूद के नहीं जा सकते, तो हम घूम के चले जाते हैं. हमने जिस टाइम पे लॉकडाउन क्लियर हुआ था या जब इंडिया में जिस टाइम पर द फर्स्ट केस वाज डायग्नोस्ड फॉर दिस कोविड-19, हमें एक मतलब उससे उससे मुश्किल से एक हफ्ता पहले तक भी 1% भी आइडिया नहीं था कि हम सब अपने अगर घरों पे बैठेंगे तो हम क्या करेंगे. एंड कहाँ से आइडिया स्ट्राइक किया, कैसे हमने शुरू किया, आज तक मतलब हमें लगता है कि यार दिस हैपेंड विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स. एंड आज मतलब गॉड हैज बीन काइंड इनफ एंड आई वुड से कि उससे बहुत अच्छा है कि प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं पे वी कैन रीच आउट टू द पीपल, वी कैन हेल्प देम इन एनी जस्ट अबाउट एनी वे दैट वी कैन, नॉट जस्ट फिजिकल थेरेपी and not just dietitian talk and not just health talk by our physicians, but उसके अलावा and not just even entertainment, हर तरह से like you name it and that we do it. Dr. Anurag, can I come in? जी जी, please sir. Anurag, I must compliment you. One, this total program which you started, हाँ जी given an incentive to a lot of people. For me, for example, हाँ जी हाँ जी downloading it on my computer or downloading it on my phone and then talking to you हाँ जी. is another something new. As you get older, you try to learn something new. Age is just a number. I And totally agree sir, totally I agree. It's a also big number. you, Ritu Batra, and rest of the people who got together. I look forward to talking to you. Sure Second, sir. this is a thankless job where you started off something जी from जी scratch and बिल्कुल सर बिल्कुल. saw how people came in. I'll also give you an example that this lockdown period, I'd like to share with my friends, is a part of history. As we grow older and the younger children will come, they'll talk about 2020 was a history where our parents passed through this. So whatever we do every day, we're leaving a part of history there. And it's a remarkable thing of people connecting. मेरा तो लाइफ का एक प्रिंसिपल है that there are no strangers in this world, they are friends you haven't met. So as बहुत soon as अच्छा you लगा, get, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी. it's a fact. बहुत बढ़िया लाइन And लगी. also say it's your attitude and not your aptitude which determines your altitude. Where you reach in life is just an attitude. देखिए एक बच्चे को लगता है 2 years to learn how to speak, but it takes a person his entire life to learn what not to speak. Because words before they are- words ये लाइन before- बहुत ही बढ़िया थी. there are words before they are spoken are under your control. This After one I'll have to write it down. No, maybe on Monday, if you give me a slot, I'll do a comedy there, and Okay. I'll also share that with my friends here. जी जी. Some wonderful people, you know. स्टैंड अप कॉमेडी सर मैं भी करता हूँ. आप मैं तो बल्कि
चाहूंगा आप प्लीज मंडे से if you can join us, it will be an honor. Right. I will be sure to tune in. I'll be sure to tune in and मैं भी देखूंगा and maybe Also, कुछ शायद मटेरियल मुझे अपने लिए भी मिल जाए क्योंकि मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत देखता हूँ. absolutely. I'm on the YouTube also. अच्छा. Oh, great. And in clubs, I've visited Delhi exclusively to do this. But the question is, I'm not a professional. Okay. I don't do comedies. What I do, I carry people through my life experiences. And those instances might make you happy. Like Corona का एक आपको latest आज एक सुना दे रहा हूँ before you all leave. You know, one gentleman got into a train and he found that the compartment was full. He didn't know where to sit. भरा हुआ था तो वो वॉशरूम गया, वहां से खांसता हुआ निकला. Everyone left the train and got down. वो जाके ऊपर बर्थ पे आके लेट गया. जब सुबह उठा तो उसने कहा रौड़खेला आ गया. बोला नहीं सर, वो कोई पेशेंट एक कोरोना का था तो उनने बोगी को डिटैच कर दी. ट्रेन तो रौड़खेला पहुंच गई है. That is good one. ओके रुचि जी, मैं आपको तो डॉक्टर्स की बहुत चीज सुना दूं. वो किसने कहा द एबीसी ऑफ डॉक्टर्स. Okay. हाँ, which you, उसने बताया द साइंस ऑफ मेडिसिन एंड द आर्ट ऑफ मेडिसिन. द साइंस ऑफ मेडिसिन इज अ पेशेंट गोज, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, तो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया और लिख दिया. नेक्स्ट पेशेंट, दैट्स द साइंस ऑफ मेडिसिन. दूसरा द आर्ट ऑफ मेडिसिन इज कि डॉक्टर के पास गया, कहेगा कैसे हैं आप, अविनाश जी कैसे हैं, वाइफ कैसी है, आपका बच्चा कैसा है. दैट्स द आर्ट ऑफ मेडिसिन. And the ABC's doctor is A is availability, B is behavior, and C is competence. And it is in the same order. Yes. Availability, behavior, half is done with time which you give. It's very important, doctor, but with the number of patients you have. And doctors are not magicians, they are technicians. Exactly. Medicine जब आपको देते हैं, it's your own immune system which accepts it and cures you. So आपको you have to devote, concentrate on your immune system. And very important, after a certain age, you must give up some type of food. The best place to lose weight is the kitchen. Control your jaw pressures. Yes, yes. That's the only thing. I'll be with you on Monday. Sure, sir. I'll be sure to tune in, sir. Yeah, pleasure. Okay, Anurag and Dr. Ruchi and all my friends. God bless you. Have a lovely weekend. Lovely, Mr. Sawai, lovely. Pleasure, sir. बहुत अच्छा सर. चलिए अब हम सब आपसे मिलेंगे मंडे को सुबह 8 बजे. तब तक आप सब प्लीज अपने घरों पे रहिएगा, सेफ रहिएगा एंड एक्सरसाइज करते रहिएगा. एवरीवन प्लीज टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव एंड God bless. चलिए ओके, बाय बाय. Thank you. From my side also, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Bye doctor. everyone. Bye. Take care.